Life is all about having experiences. They could be positive experiences, they could be negative experiences. They could be crisis times and they could be very happy and very content times. लेकिन ये जो life experiences हैं जैसे भी हों, they help us having to develop an opinion about our own self, about our personality, about our abilities. क्योंकि इन इवेंट्स में हम जैसा कोप करते हैं, जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं और इन इवेंट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं they help us perceive our own personality. और ये जो ओपिनियन और परसेप्शन है हमारे अपने बारे में, हमारे पर्सनालिटी के बारे में, हमारे एबिलिटीज़ के बारे में, ये ओपिनियन is known as self-esteem, which we would be talking about in this video. We'll be letting you know certain causes and effects and will help you cope with self-esteem. So stay tuned. Assalamu alaikum. I'm Taira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been working as a head consultant at Pehchan Clinic that aims to provide online resources to create mental health awareness and help destigmatize all the concerns related to mental health. It also provides awareness by holding different workshops and seminars. If you want to check about their resources, you can go to their social media handles. The links would be linked in the description box below. I'm also working at Institute of Medical Rehabilitation G8 and IHS Children and Family Hospital F10. This month at Pehchan, we'll be talking about trauma, how trauma leads to PTSD and how PTSD affects mental health and your personality, specifically your self-esteem. And on top of that, we'll also be providing you with certain strategies to boost your self-esteem to have a better and productive life. If you want to stay checked in with your mental health, click on the notification bell and subscribe to our channel so that you can be updated about all the new videos that will be coming up. Let's see what do we have for you in this video. So let's have a detailed look at what is self-esteem. As I said, self-esteem is opinion about yourself, about your abilities, about your personality. What can I do? What can I not do? देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम अपने आप को ही बता रहे होते हैं कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ की है, ये तो मैं फ़ौरन कर लूँगी. कई दफ़ा पर हम खुद ही अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक दे रहे होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है. या हम बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम लेना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से हम शेम एंड गिल्ट में जा रहे होते हैं. इसी तरह बहुत सारे लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये सारा का सारा कसूर मेरा, और हम अपने आप को मुस्तकिल बताते रहते हैं कि येस आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, और मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती. सो जनरली ये चीज़ें जो हम लोग बोल रहे होते हैं अपने साथ, ये हमारे सेल्फ एस्टीम को फीड कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारा ओपिनियन है. अब ये लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है जहाँ पर हम मुस्तकिल अपने आप को नेगेटिव बातें कहते जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव या हाई सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है जहाँ पर हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, हम अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ के बारे में बहुत श्योर हैं, तो पॉजिटिव फीड करते जाते हैं, तो ये हाई सेल्फ एस्टीम होती है. अब जनरली लो सेल्फ एस्टीम कहाँ से डेवलप हो रही होती है? ये लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं हमारे बारे में, लोग जो हमें बता रहे होते हैं, या जो सर्टन लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी वजह से डेवलप हो रही होती है. ये ओपिनियन हमारा बचपन से शेप होना शुरू हो जाता है, एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि अगर हमारी सेल्फ एस्टीम एक दफ़ा डेवलप हो गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती. इट्स अ प्रोसेस. ये कभी हाई होती है, कभी लो होती है, कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लो हो जाती है, जनरली हाई होती है. So this is not static at all. It is a developmental process that can be changed, that can be rebuilt, that can be nourished and renourished. So ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो रही होती है? क्या कॉज है हाई या लो सेल्फ एस्टीम का? So researchers have found that there are 3 major causes, right? So one is parent of the same sex. यानी बचपन से हम अपने सेम सेक्स पेरेंट को जैसा देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी जैसी होती है, जैसा वो अपने बारे में कह रहे होते हैं, जैसा वो हमारे साथ बिहेव कर रहे होते हैं, जो उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम इससे बहुत ज़्यादा फीड हो रही होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
ایک بچی اپنی مدر کو تھرو آؤٹ چائلڈہڈ یہ کہتے ہوئے سنے گی کہ میری زندگی تو خراب ہو گئی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اس سارے کا قصور میرا ہے, میں بہت بری ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, اگر وہ مستقل ماں کی نیگیٹو سیلف ٹاک سنتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنے لیے بھی اسی طرح کے اوپینینز بنانا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کمپیریٹیو پوائنٹ جو سیم سیکس پیرنٹ ہے وہ نیگیٹو سیلف ٹاک میں انوالوڈ ہے. اسی طرح اگر ایک بچہ اپنے فادر کو بہت کانفیڈنٹ, بہت زیادہ اکمپلش دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت اس کے فادر کی جو اسٹیٹمنٹس وہ سن رہا ہے وہ یہ ہیں کہ جی میں کر سکتا ہوں, ہم بزنس کریں گے, رسک لینا ضروری ہوتا ہے, رسک لیں گے تو اکمپلش کر لیں گے, وی نو وی کین ڈو اٹ, اور وہ انکریجمنٹ اور انکریجنگ اپریشیٹو اسٹیٹمنٹس اپنے باپ کی سن رہا ہوتا ہے, تو وہ جنرلی ہائی سیلف اسٹیم کی طرف جاتے ہیں. یہی اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, اگر مدر جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھا کر رہی ہیں تو بچیاں بھی اس کے اکارڈنگلی بہت اچھا اپنے لیے سوچتی ہیں, اور اگر فادر جو ہیں وہ لو سیلف اسٹیم میں ہیں تو بچے بھی اسی طرح سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائک وائز جیسے پیرنٹس کا رول ہے تو سیکنڈ کاز جو آتا ہے وہ آپ کے پیئرز آتے ہیں. اب پیئرز میں آپ کے فرینڈز, آپ کے کولیگز, آپ کے ریلیٹیوز آف یور سیم ایج آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس ایک اور کمپیریٹیو پوائنٹ بنتا ہے. وہ آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح چیزیں اچیو کر رہے ہیں, ان کمپیریزن آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں. سو یہ بہت بڑا ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے فار یور سیلف اسٹیم بلڈنگ, رائٹ. تیسرا چیز از کائنڈ آف لو دیٹ یو ریسیو تھرو آؤٹ یور چائلڈہڈ. اب لو کین بی کنڈیشنل, کین بی انکنڈیشنل. کئی دفعہ بچوں کو پیار جو ہے وہ صرف گریڈس کی بیس پہ مل رہا ہوگا یا ان کے اچھے بیہیویئر کی بیس پہ مل رہا ہوگا, جو کنڈیشنل ہوتا ہے. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ یا انکنڈیشنل لو ہوتا ہے جہاں پر وداؤٹ اینی کنڈیشنز بچوں کو پیار مل ہی رہا ہوتا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں. اب لو کے ساتھ ساتھ جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ لائف ایکسپیرینسز. فورتھ کاز کین بی لائف ایکسپیرینسز, جس کے بارے میں ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. فار ایگزامپل چائلڈہڈ میں اگر نیگیٹو یا کرائسس, کرٹیکل ایونٹس ہیں, کرٹیکل ایکسپیرینسز ہیں, پیرنٹل ابیوز ہے یا فزیکل ابیوز ہے, سیکشل ابیوز ہے یا وائلنس ہے یا بہت زیادہ ٹرامیٹک ادر ایونٹس ہیں جو بچوں نے فیس کیے ہیں, اس کی وجہ سے بھی وہ اپنے بارے میں ایک نیگیٹو بلیف بنا لیتے ہیں, اپنی سیلف اسٹیم ان کی لو ہو جاتی ہے. اسی طرح بولنگ ہے, جو ہم نے اپنی ایک اور پریویس ویڈیو میں بولنگ پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, جس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں, کہ بولنگ کین بی اے ویری میجر کاز آف لو سیلف اسٹیم, کیونکہ وہاں پر سم اور دی ادر جو وکٹم ہے اس کو یہ بلیو کروا دیا جاتا ہے کہ یو ناٹ گڈ انف. سو وہی تھاٹ لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ باقی ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جہاں پر they were good enough, right? So bullying and traumatic events are two of the other major causes جو self esteem میں contribute کرتے ہیں. Now we have reviewed کہ causes کیا ہیں. Let's talk کہ اس کے افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور افیکٹس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وی وانٹ کہ جی سیلف اسٹیم کو بہتر کیا جائے, سو فرسٹ وی شوڈ نو کہ اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں, تبھی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرنا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اس کو اگر یہ بہتر ہو جائے تو ہم کتنی لائف کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں. سو اس کے افیکٹس کین بی لائک سیلف اسٹیم کین لیڈ ٹو اینزائٹی, کین لیڈ ٹو ڈپریشن. سیلف اسٹیم آپ کے پی ٹی ایس ٹی میں بھی لو ہو رہی ہوتی ہے, سو اگر ہم سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں تو پی ٹی ایس ٹی کے سمٹمس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایز وی سیٹ کی ٹراما سے ریلیٹڈ ہے, تو ٹرامیٹک ایونٹ سے سیلف اسٹیم لو ہوئی تو پی ٹی ایس ٹی از ٹراما, رائٹ. سو اس کو امپروو کرنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے گولز اچیو نہیں کرتے, ٹرو پوٹینشیلس کو اچیو نہیں کرتے کیونکہ یو تھنک کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, تو یو ڈونٹ پٹ ان دی ریکوائرڈ ایفرٹ. پھر آپ اپنے ایکڈامکس میں افیکٹ ہو جاتے ہیں, سوشل ایبلٹیز میں ہوتے ہیں, آکیوپیشن میں آپ کو اگر اپنے پہ یقین نہیں ہے تو آپ بہت ساری پرفارمنسز نہیں دے پا رہے ہوتے جو کہ ایکچولی آپ دے سکتے ہیں. سو یہاں پر اگر ہم ایک براڈ وے میں بات کریں تو سوشل, آکیوپیشنل اینڈ ایکڈامک فنکشننگ لو سیلف اسٹیم میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے, امپیئر ہو جاتی ہے, جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو لو کر رہی ہوتی ہے. سو اٹس آلویز بیٹر کہ اگر ہم اس کو بہتر کریں تو ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہو سکتی ہے. سو ناؤ لیٹس ڈائریکٹلی ڈائیو انٹو سرٹن اسٹریٹجیز ٹو اوور کم this or to boost your self-esteem. So first and foremost, you have to recognize
that you have low self-esteem. Throughout the video, we'll be talking about low self-esteem because we want to work on boosting the self-esteem, and we are concerned with जब हमारी self-esteem low हो जाती है because of the traumatic experiences in childhood, right? So जिनकी high self-esteem है उनको तो इसके ऊपर workout करने की ज़रूरत ही नहीं है. They are like lucky people. So for the low self-esteem, first step is to recognize that you have low self-esteem, and then you have to identify कि ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आपके इसके रूट्स क्या हैं. वेदर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, किसी ने कोई कमेंट ऐसा कह दिया था, या कोई ऐसे लाइफ में कोई फेलियर हो गया था, या कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट था जिसकी वजह से ये कॉज हुआ है. सो यू हैव टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई कि ये कहाँ से आ रही है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट, राइट. Second step is to identify the negative self-talk that you have with yourself. अब होता क्या है, जब भी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो हम अपने साथ ही नेगेटिव बात कर रहे होते हैं. बाकी दुनिया के सामने तो हम बड़े पॉजिटिव, बड़े कंपोज्ड होते हैं, लेकिन अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ हम बड़ा बुरा सलूक कर रहे होते हैं, एंड दैट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक. मैं नहीं कर सकती, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग एनीथिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटसोएवर बैड इज हैपनिंग. सारी चीज़ों का ब्लेम हम अपने ऊपर ले रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जो किसी की भी लाइफ में होता है वो इनवाइटेड नहीं होता. कोई भी ट्रॉमा का रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं होता. ट्रॉमा हमेशा अनइनवाइटेड आता है, उसके रिस्पॉन्सिबल कभी भी विक्टिम्स नहीं होते. सो वो ब्लेम हमें इतना फोर्स करता है कि ब्लेम करते 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 हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं. और जब तक हम इस सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई नहीं करते, राइट इट डाउन, ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ, उनको एक दफ़ा पेपर पर लिखें, एंड यू विल गेट टू नो कि हम अपने साथ कितना हार्श हैं. बाकी सबसे तो बड़े प्यार से मिल रहे होते हैं, ऑल्दो जो परपेट्रेटर्स हैं समटाइम्स हम उनको भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया कि देयर आर कंडीशन जहाँ पर परपेट्रेटर्स को भी हम सरेंडर करके उनके साथ बड़ा अच्छा रोल प्ले करना शुरू हो जाते हैं, उनकी बातें मानना शुरू हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाते हैं. लेकिन हम अपने साथ कितने हार्श हो जाते हैं, जबकि हम तो विक्टिम थे उस ट्रॉमा के, राइट. सो नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करें. वो सारे थॉट्स जो आपके बारे में हैं, जस्ट लिस्ट देम डाउन so that you can work on them and you can see कि ये कितना affect कर रहे हैं आपकी self esteem को, right. So अब जब हमने बात की है कि blame कर रहे हैं, that means कि हम अपने आप को accept कर रहे हैं as a bad person or as someone who is responsible for everything. So the third step is accept yourself with your goods and bads without just having to blame yourself for everything that has happened. देखिए हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको हम उनके गुड एंड बैड के साथ ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं होता. सो हम अपने लिए इतने क्रिटिकल क्यों हो जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बैड को देखकर अपने आप को जज करना शुरू होते हैं और गुड को इग्नोर कर देते हैं. या हम ये कहते हैं कि अगर मेरे से एक चीज़ नहीं हुई, एक इवेंट मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है, या एक एरिया मेरी लाइफ का अफेक्ट हो गया है, तो बस मैं ख़त्म हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे अंदर तो कोई एबिलिटी नहीं बची. जबकि बाकी बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ मेरे अच्छे होते हैं, मैं बाकी जगहों पर बहुत अच्छा कर रही होती हूँ, पास्ट में बहुत अच्छा कर चुकी होती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ वो सलूक कर रही होती हूँ कि सब चीज़ों को इग्नोर करके एक की बेस पे वो लेंस ऐसा लगा देते हैं कि एक इवेंट, एक एक्सपीरियंस, एक एबिलिटी की बेस पे हम अपने साथ नेगेटिव हो जाते हैं और अपने आप को एक बुरा बंदा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, या एक ऐसा बंदा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं जो कुछ नहीं कर सकता, राइट. So accept करना है with your goods and bads. Have a look at all those good qualities in yourself, जैसे हम बाकियों को कर रहे होते हैं. So जहाँ पर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें अपने आप को ब्लेम से निकालना है कि हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं. वो शेम और गिल्ट जो हमारे अंदर आ रहा है, जो हमें लीड करता है एक्सेप्टेंस ऑफ आवरसेल्फ एज अ बैड पर्सन, उसको ओवरकम करना है by having a look at the good aspects of our personality. Now the fourth step would be to further build upon this acceptance of ourselves as a good person. अब हम ये कैसे करेंगे? नेगेटिव से हमने पॉजिटिव तक का जो सफ़र करना है वो कैसे करना है? अगेन जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव की लिस्ट बनाएं, उसी तरह अब एविडेंसेस इकट्ठे करें. ये जो नेगेटिव थॉट्स आपने की हैं, इसके एविडेंसेस इकट्ठे करें, फेवर में भी और अगेंस्ट भी.
If the thought is I cannot do anything, anything means anything, right? So एविडेंसेस इकट्ठे करें कि क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये जो anything है इसमें क्या है जो आपने नहीं किया, एंड देन इसके अगेंस्ट भी, इस थॉट के अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे करें कि आप क्या क्या कुछ लाइफ में अचीव कर चुके हैं. बेशक वो एक चाय का कप बनाना ही था, या वो कोई किसी की मदद करना था, किसी को पानी पिलाना था, खाना खिलाना था, या कोई और काम करना था, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी जो आपने अचीव की है, लिस्ट इट डाउन देयर एंड यू विल रियलाइज कि एक या दो इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बाकी बहुत लंबी लिस्ट ऐसी बनेगी जहाँ पर यू आर एक्चुअली एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. सो ये थॉट कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगी जब आपके सामने रिटन प्रूफ आएगा कि आप बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में कर चुके हैं. और ये लिस्ट बनाते हुए कीप एन आई ऑन द होल लाइफ स्पैन, किसी एक आध साल एक आध हफ्ते के ऊपर ना बनाए, पूरी जिंदगी से एविडेंसेस इकट्ठे करें, राइट? अच्छा, साथ साथ एविडेंसेस उन चीज़ों के इकट्ठे करें, वो लिस्ट बनाएं जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव ओपिनियंस देते हैं. क्योंकि कई दफ़ा हम खुद पे तो भरोसा नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं. तो उनकी बातों को लिस्ट डाउन करें कि कहाँ कहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, आप पे ट्रस्ट कर रहे थे, आपको रिस्पॉन्सिबल, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझ रहे थे. सो उन सारी चीज़ों को भी लिस्ट डाउन करें. उसके बाद अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं, राइट? क्वालिटीज़ आपके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं. अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की लिस्ट करें. सो दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी की तरफ आने के लिए एक तो आपने एविडेंसेस इकट्ठे किए जो अगेंस्ट हैं आपकी नेगेटिव थॉट के, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाई, और साथ साथ आपने लोगों के जो पॉजिटिव ओपिनियंस हैं आपके बारे में उनकी लिस्ट बनाई. और इन लिस्ट को कहीं सामने रखें जहाँ पर दिन में मल्टीपल टाइम्स आपकी नज़र इस पर पड़े और आप इसे रीड आउट करें. क्योंकि थ्रू आउट द डे आप अपने साथ जो नेगेटिव टॉक कर रहे हैं उसको स्विच करने के लिए ये लिस्ट जब आपके सामने होंगी तो बहुत हद तक आप आहिस्ता 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 आपकी थॉट्स नेगेटिव वाली ख़त्म होकर पॉजिटिव पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, और आप अपने साथ हार्श के बजाय लविंग और केयरिंग होते जाएंगे और अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट कर रहे होंगे, right? So this is how you can work on this negative self-talk to improve and build upon your self-esteem. इसके अलावा आपको अपना ख्याल रखना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. वो कैसे? अपनी नींद का ख्याल रखना है अपनी, क्योंकि जैसे ही होता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, हम कहते हैं अच्छा मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती कि मैं आराम करूं, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती कि मैं ये अच्छा खाना खाऊं. सो नींद का ख्याल रखें, आराम का ख्याल करना है, अच्छा खाना खाना है, किसी ग्रीन एरिया में वॉक के लिए चले जाएं, हैव सम गुड टाइम, लेजर टाइम रखें, जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद हैं वो करें, क्योंकि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हैं. कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही होती है. एक और चीज़ जो आपने करनी है, पीपल प्लीज़र बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हर वक्त हम यस 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 करते रहें. यू हैव टू लर्न टू से नो. जहाँ पर आप नहीं कर सकते, सो यू डोंट हैव टू ओवरबर्डन योरसेल्फ. जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पर टेल देम इन अ वेरी नाइस एंड पोलाइट वे कि सॉरी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता. आप अपने आप को कि अच्छा मेरे मैं तो कुछ लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाती तो बस सारी चीज़ों में यस करते जाएं, ऐसा नहीं करना, राइट? सो लर्न टू से नो. बी असर्टिव, assertive in a way कि जहाँ पर आप फेक नहीं करेंगे, लेकिन लर्न द वेज जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे ट्रिक्स और वेज लर्न करें और पॉजिटिवली उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. एक असर्टिव पर्सन की तरह सामने आए. अपने आप को another way is to forgive yourself. अगैन अपनी पूरी लाइफ जर्नी अपने माइंड में रखें. हम जो हैं जैसे भी हैं आज अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं, उनसे स्ट्रेंथ लेनी है, उनको अपनी वीकनेस का बायस नहीं बनाना है. अगर हमारी लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं तो वो हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, देखिए कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उससे सीख कर आगे निकलना होता है. इन ऑर्डर टू टेक द लर्निंग्स एंड लेट द इमोशन गो, यू हैव टू हैव अ वेरी डीप एंड कीन लुक एट ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस. उनको देखें, उनसे लर्निंग्स लें, हर इवेंट में से अपने पास लर्निंग्स नोट करें. मैंने क्या सीखा?
अगर मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी तो मैंने सीखा क्या है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम इसको कैसे बेहतर कर सकती हूँ, इंस्टेड के सिर्फ ब्लेम करती रहूँ कि मेरी वजह से ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। लर्निंग लेकर आगे चलना है, इमोशन से निकलने के लिए लर्निंग्स पे फोकस करना जरूरी है। सो टेक द लर्निंग्स एंड लेट द इमोशन गो एंड फॉरगिव योरसेल्फ for whatever has happened to you in past because you are not responsible for it. हो सकता है कि आपके perpetrators ने या abusers ने या वो लोग जो इर्द गिर्द थे उन्होंने आपको इस बात का यकीन दिला दिया हो कि आप ही responsible थे इसके, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। आप विक्टिम अगर थे तो उस वक्त आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ तो मुझे याद आया कि हमारे यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी देखने में आया है कि जब बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और अगर ड्यूरिंग दी डिलीवरी मदर की डेथ हो जाए तो यहाँ पर बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ चली गई। हाउ डू यू थिंक दैट चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मदर्स डेथ? वो पूरी लाइफ ये सुनते सुनते बड़ा हो रहा है तो उसकी सेल्फ एस्टीम का सोचें क्या होगा, वो तो अपने आप को ब्लेम करता जा रहा है, वेयर ये सच नहीं है। सो व्हेन यू ग्रो अप तो उस बच्चे को ये सोचना है कि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि एविडेंस भी ऐसा नहीं कहता, लॉजिक भी ऐसा नहीं कहती। मुझे इससे ये ज़रूर सीखना है कि लोगों की हर बात जो मेरे बारे में है वो सही नहीं है, जो वो नेगेटिव मुझे कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मुझे इससे निकलना होगा, क्योंकि वो एक नेचुरल इवेंट था जो हुआ, वो मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से मदर की डेथ हुई। सो उस ब्लेम से बच्चे को अपने आप को निकालने के लिए एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म करना है, पॉजिटिव होना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। सो बेशक आपको किसी ने बहुत यकीन दिला दिया हो बचपन में कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जब आप फॉरगिवनेस पर आएंगे तो यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ, राइट। जब हम बात करते हैं कि हमें फॉरगिवनेस करनी है, लर्निंग्स लेनी है, इमोशन से निकलना है, तो हम अपने आप को एक बेहतर हाई सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल की तरह सामने लेकर आते हैं। लास्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू बिल्ड अप योर सेल्फ एस्टीम इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए, जब अगर चाइल्डहुड से हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम बनना शुरू हो जाती है या चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स की वजह से अफेक्ट हो रही होती है, तो वहाँ पर ही हमें ये रियलाइज़ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि समहाउ और द अदर वो बच्चा उस टाइम पर अपने आप को ये फील करता था कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, द कंट्रोल इज विद समवन एल्स, वो कुछ अपनी लाइफ के लिए कर नहीं सकता। अगर वो किसी इवेंट में स्टक हो गया था तो वहाँ पर वो कुछ कर नहीं सक रहा था, तो वो लाइफ लॉन्ग ये समझता रहता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता और वो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ कंडीशन का, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो वीक है। जबकि हम ये नहीं सोच रहे कि वो एक बच्चा था जो उस टाइम पे वीक था। अब you're a grown adult and you can take charge of your life. So sit and talk to that inner child. उसको ये बात communicate करें कि उस वक्त तो you could not take responsibility or you were weak, and you were not able to do anything. But now you're a grown adult and you can take charge. You can do things to make your life better, right? So talk to that inner child, take that control of your life and do positive things in your life. Challenge लें, जितने challenges आप लेंगे उतनी ही आपकी self esteem boost होती है, क्योंकि अब लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। उस बच्चे को साथ लेकर चलें जो डर गया था बचपन में, लेकिन वो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी है। उसको प्यार करें, उसको वहाँ उस डर से निकालें, उसको लर्निंग्स दें, उसको चैलेंजेस से लड़ना सिखाएं, सो दैट इन फ्यूचर आप अपने आप पर भरोसा करते हुए बहुत आसानी से लाइफ के सर्कमस्टांसेस से लड़ सकें। सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजीज आपको आपके सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में हेल्प आउट करें। दिस वॉज पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू द ट्रॉमेटिक इवेंट्स जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। इन फ्यूचर वी मे बी टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग योर सेल्फ एस्टीम इन जनरल. So stay tuned to our channel, and if you want any of our support, you can always contact us and we would definitely be there to help you out. Thank you.